Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Badra, and in this video for BA Part 3 English Literature, we will read another poem from paper first Poetry and Drama. This poem is from Unit 3rd. This poetess name is Judith Wright. She's from Australia, and her poem "Woman to Man" very personal and intimate poem this is, and this poem has been prescribed in our syllabus. First, we learn about the poetess Judith Wright. This is Judith Wright, her portrait. Judith Wright, she was born on 31st of May 1915 and died on 25th of June 2000, was a well-known Australian poet, short story writer and a conversationalist. She was from Australia, a famous well-known poet and a short story writer. She was also a highly acclaimed critic of Australian poetry. तो ऑस्ट्रेलियन पोइट्री की वो बहुत ही हाईली acclaimed, very celebrated critic, आलोचक भी वे रही हैं. Apart from this, Wright was an uncompromising campaigner for Aboriginal land rights. Aboriginal जो हैं, वहाँ के जो मूल जनजाति हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए ये शब्द आता है एबोरिजिनल्स. और वहाँ के जो एबोरिजिनल्स हैं, उनके जो भूमि से संबंधित अधिकार हैं, उनके प्रति भी उन्होंने काफ़ी कंपेन किया, काफ़ी उन्होंने इसका भी मतलब कंपेनिंग करते हुए उनके अधिकारों के लिए काफ़ी उन्होंने युद्ध और प्रयास किया, यानी कि युद्ध स्तर पे प्रयास किया. अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो समझौता ना करे. She had received honorary degrees from several universities and was also appointed as one of the members of Australia Council. Australia Council की भी वे सदस्य रही हैं 1973-1974 में. Wright was also a highly successful literary critic and had edited several collections of Australian verse in her career. ऑस्ट्रेलिया का जो साहित्य है, पोइट्री जो है, पोइट्री है, चाहे वो स्टोरी है, चाहे वो नॉवल है, उनमें ये बड़े नामों में से एक गिनी जाती हैं जूडिथ राइट. और इन्होंने ऑल्सो हाईली सक्सेसफुल लिटरेरी क्रिटिक होने के साथ साथ शी हैड एडिटेड सेवरल कलेक्शंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन वर्स इन हर करियर. बहुत से जो ऑस्ट्रेलियन पोइट्री के जो कलेक्शंस हैं, उन्होंने उन्हें एडिट भी किया. उनकी लाइफ ऑफ द पोइटेस. जूडिथ राइट वॉज बॉर्न इन आर्मीडेल, न्यू साउथ वेल्स के आर्मीडेल में वो उनका जन्म हुआ. After the early death of her mother, she lived with her aunt and then boarded at New England's boarding school जो होते हैं, वहाँ पे रहना, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना. Boarded at New England Girls School after her father's remarriage in 1929. उनके पिता ने दोबारा शादी कर ली 1929 में, और ये जो है हॉस्टल में रह के पढ़ाई इन्होंने की न्यू इंग्लैंड गर्ल्स स्कूल में. After graduation के बाद Wright studied philosophy, English, psychology and history at the University of Sydney. सिडनी की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जिसका नाम है, वहाँ पे इन्होंने ये इंग्लिश, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री में इन्होंने अपना स्टडी इन्होंने की. Judith Wright was the author of several collections of poetry including The Moving Image, Woman to Man, The Gateway, The Two Fires, Birds, The Other Half, Magpies, Shadow, Hunting Snake, among others. ये जो इनके हैं मुख्य नाम हैं इनकी पोइट्री कलेक्शंस के. इनमें से आप 2 या 3 के नाम याद रखें, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन, एक जो है 1 लाइन क्वेश्चन जो है फॉर 50 वर्ड्स, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फॉर 2 मार्क्स. She was recipient of Christopher Brennan Award. इन्हें क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड भी मिला. She was recipient of Australian National Living Treasure Award in 1998. 1998 में इन्हें लिविंग ट्रेजर, जीवित ट्रेजर के लेजेंड के रूप में इन्हें जो अवार्ड दिया जाता है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल लिविंग ट्रेजर अवार्ड, वो भी इन्हें मिला. Wright was also nominated for 1967 Nobel Prize for Literature. नोबेल प्राइज़ जो साहित्य में मिलना था 1967 में, उनके लिए इन्हें नामित भी किया गया था. What is this poem about? The poem Woman to Man, written by Judith Wright, describes the feelings of a woman from the time of sexual encounter with her husband until the time of labor. So एक पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच, उनके सेक्सुअल एनकाउंटर, उनके जो इंटीमेट टाइम से लेके एक बच्चे को कंसीव करने से लेके उसके लेबर तक, उसके जन्म तक,
कि ये पोएम उसकी फीलिंग्स को बताती है। अलग अलग पैराग्राफ जो हैं अलग अलग स्टेज को दर्शाते हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ उम्मीद करती है कि एक बच्चे को वो जन्म देंगे, एक ऐसा बच्चा जो उनके बीच तीसरा है, जो अपने आप में उनके लिए लक्ष्य भी है और उनका हंटर भी है। कई इमेजेस के साथ, कई सिंबल्स यूज़ करते हुए इस पोएम में बहुत ही इंटीमेटली इसे कन्फेशनल पोइट्री की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम एक मूवमेंट की तरह लिया जाता है जब कोई पोइट या पोइटेस अपने बहुत ही जो इंटीमेट या प्राइवेट टाइम होता है, जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, उनको शेयर करें। सो दिस पोएम इज़ वेरी कन्फेशनल in its tone, and it has a very feministic tone in it, because a woman who's not considered to be very frank about these type of matters, she is talking about her intimate times, intimate moments with her husband, and what are the consequences of that intimate relationship. The consequences is obviously bearing a child, and then she is talking about how that child will develop in her womb. उनके जो गर्भ में वो बच्चा किस प्रकार से विकसित होगा, किस प्रकार से वो उनके दोनों के लिए एक लक्ष्य की तरह और उन दोनों के हंटर की तरह भी काम करेगा। She expresses her feelings as a wife as well as the holder of a future offspring in her belly. उन दोनों की या उनकी जो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग है, जो होने वाली संतान है, उसके बारे में भी जो फीलिंग्स है उन्हें भी वो एक्सप्रेस करती हैं। वो जो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग उनकी बेली में जो डेवलप कर रही है, जो उनके शरीर में जो बढ़ रही है, उसके बारे में भी वो अपने शो करती हैं। सो बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही प्राइवेट, लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम है जो ये है वुमन टू मैन। वुमन जो है वो खुद नरेटर हो सकती हैं, या फिर कोई भी एक स्पीकर है, एक औरत जो अपने पति से डायरेक्टली एड्रेस करते हुए उससे बता रही है कि कैसे उनके बीच जो सेक्सुअल इनकाउंटर था या सेक्स जो हुआ, उससे क्या कॉन्सिक्वेंटली हाउ दे आर गोइंग टू बी अ चाइल्ड, हाउ शी इज़ गोइंग टू गेट प्रेगनेंट आफ्टर दैट, एंड हाउ शी इज़ गोइंग टू be a child, bring in another living being amongst them, between them two. Thank you. So about this poem, after this poem we will read the poem in the next video. आप पहले इस कवित्री के बारे में थोड़ा जानें, इनके बारे में छोटे क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।